Hello. So, dear students, in this last video of logic, we will solve problems on switching network. लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि स्विचिंग नेटवर्क से रिलेटेड जो थ्योरी था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि स्विच अगर क्लोज है तो उसका ट्रूथ वैल्यू 1 होता है, अगर ओपन है तो उसका ट्रूथ वैल्यू 0 होता है। ठीक है। फिर स्विचेस सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, और सर्किट्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें पैरेलल में भी सीरीज रहेंगे, स्विचेस रहेंगे और सीरीज में भी स्विचेस रहेंगे। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस के रहेंगे। टू स्विचेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर एक क्लोज है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस को रिप्रेजेंट करने का एक ही सिंपल स्टेटमेंट लॉजिक का लेते हैं। जैसे अगर S1 और S1 डैश कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है तो हम बोलेंगे कि P रिप्रेजेंट S1 क्लोज्ड। अब S1 क्लोज्ड है तो ऑटोमेटिकली S1 डैश जो है वो ओपन हो जाएगा। करेक्ट है, दैट इज P रिप्रेजेंट S1 डैश इज ओपन। राइट। तो अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम दो वेराइटीज़ के रहेंगे कि आपको स्विचिंग नेटवर्क दिया हुआ है, उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख के रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। और दूसरा वेराइटी क्या रहेगा कि लॉजिकल स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसका हमको स्विचिंग नेटवर्क बनाना है। तो almost we will solve three problem each to both the varieties. Okay, converting the switching networks into the logical equivalent form and converting the logical statement into the switching form. We will see three problems of each variety. Okay, and of course you can make the truth table as well. Truth table, that is input output table. We have to use the truth values of conjunction, disjunction, negation, all those things. Okay. One important point already explained in last video, that the truth value of any simple statement earlier was represented by T. Now we will represent it by 1. Okay. And when switch is closed, then this truth value is T, that is 1. And when switch is open, its truth value is F, that is 0. So let's start with the first problem. This is the switching networks. We have to convert this into the symbolic form. So how many number of switches are there? That will represent, each switch will represent a simple statement, and definitely the lamp will represent, that is the result one. Okay. The blowingness of lamp is our main motto. We have to blow the lamp. Under what condition the lamp blows, we have to look for this situation, right? So how many switches are here? In this particular situation, we are having S1, S2 and S3. So therefore there are 3 switches, and of course one lamp is there. So we have 4 simple statement now. Okay, so the P, let P represent S1 is closed, right? Q represent S2 is closed, right? R represent S3 is closed, and of course L represent lamp blow. So there are 4 simple statements. Okay, and S1, S2, S3 are switches. Now look at here, these two switches S2 and S3 are in series, where this S1 is in parallel with S2 and S3. करेक्ट है। तो पैरेलल में अब उसमें हमने देखा था कि करंट यहाँ से फ्लो होता है। अगर ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो करंट ऐसे होते हुए इधर आ जाएगा, लैम्प ब्लो हो जाएगा। फिर और यानी पैरेलल में है तो और वर्ड हमको यूज करना पड़ता है। करेक्ट है। तो इसीलिए इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, S1 इज क्लोज मतलब P, और के लिए होता है डिसजंक्शन। करेक्ट है। और के लिए क्या होता है, डिसजंक्शन। और ये दो स्विचेस सीरीज में है, मतलब अगर ये भी क्लोज हो और ये भी क्लोज हो तभी करंट यहाँ से फ्लो होगा, and it will pass through the lamp and then the lamp will blow, right? So fine. So Q and R representing that S2 and S3 both are closed, and S2 and S3 are in series. Therefore in series we have to use the conjunction, that is Q conjunction R.
then only lamp will blow. So this is the logical equivalent of this circuit, that is P disjunction Q conjunction R is equivalent to L. That's all. करेक्ट है. तो सीरीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आपका पैरेलल का कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपरली लगा लिए तो अभी किस किस सिचुएशन में इंटरप्रेट करने के लिए भी आ सकता है. इंटरप्रेट करने के लिए आपको पूछ सकता है, तो आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना पड़ेगा. इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के बाद में जो आउटपुट है उस आउटपुट में जहाँ 1 आता है उस सिचुएशन में लैम्प ब्लो होता है, जहाँ 0 आता है वहाँ पे लैम्प ब्लो नहीं होता. तो आपको कल मैंने बताया था इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाया जाता है. ठीक है, पी क्यू आर है तो उसके लिए कैसे बनाना है, तो यू कैन डू इट and you can interpret your results, right? But here we will only see that the logical equivalent of circuit, right? So come to the second problem. So this is the second problem of converting switches into the switching networks into the logical equivalent form, and very important question. Now here you can see that we are using complementary switches. Complementary switches वाले ही problems बोर्ड में आते हैं. ये MSCT लेवल और स्टेट बोर्ड लेवल का टॉपिक है. स्टेट बोर्ड में इसके प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट S1 dash is there, that is S1 and S1 dash complementary switches are there. S2 and S2 dash is there, it means that the complementary switches concept. So basically there are two simple statements required, okay, because two varieties of complementary switches we are using over here. So yes, of course, so P represent S1 is closed. Now P represent S1 is closed, so P automatically represent that S1 dash is open. Complementary switches definition is that two switches are complementary to each other. If one of them is open, then other is automatically closed. So S1 is closed, that means that S1 dash, its complementary switch will open automatically. Correct? And of course, representing the P अपना Q S2 is closed. तो अब जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस में ये इंपॉर्टेंट है. हिडन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर P represent that S1 is closed and S1 dash is its complementary switch, that means that the negation of P represent S1 dash is closed. This is important. And similarly negation of Q represent that S2 dash is closed. Correct? Because Q represent S2 is closed, that means S2 is already open, and hence the negation of Q represent S2 dash is closed. ये इसमें हिडन रहता है, इसको आपको पकड़ना है. करेक्ट है, कोई इशू नहीं. अब आते हैं हम ये नेटवर्क में ये दो स्विचेस सीरीज में है और ये दो स्विचेस पैरेलल में है. तो सीरीज में अगर स्विचेस होते हैं तो हम कंजक्शन यूज करते हैं, और पैरेलल में अगर स्विचेस होते हैं तो हम डिसजंक्शन यूज कर सकते हैं. डिसजंक्शन यूज करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो ठीक है साहब, तो पहले तो आप इसको कंजक्शन में ले लीजिए और फिर डिसजंक्शन में ये जो कंजक्शन में आने वाला है उसको लेंगे. हो गया काम खत्म. तो डेफिनेटली यहाँ पे L तो है. L क्या है? लैम्प ब्लोज. ठीक, अब हम आते हैं नेटवर्क के ऊपर. S1 डैश है. S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P कंजक्शन, बिकॉज सीरीज में स्विचेस, the switches are in series, that will represented by the conjunction when we will convert the switching networks into the logical equivalent. So here negation of P conjunction S2 is Q, and now the switches are in parallel, therefore we will use the disjunction sign. Okay, S1 and S2 dash are in series, so the S1 represented by the P, and series that means conjunction. S2 dash means negation of Q, and of course equivalent to L. So this is our logical equivalent to the given switching network, right? Negation of P, conjunction Q, disjunction P, conjunction negation of Q. अब आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि कुछ कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, उनके रिजल्ट्स को आपको अगर
सीधा सीधा आपको मेमोराइज है तो इधर के प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना लेते हैं आप। अब ऐसा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, डिसजंक्शन पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंट है बाई कंडीशनल के नेगेशन में। सो नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल है, दिस इज इन फैक्ट द नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल पी डबल इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू एल, ये आंसर। Now you can write this answer, that is the negation of P double implies Q equivalent to L only when you know the biconditional statement, its important result and of course their its negation। तो ये सब तो सब कैसे निकालना है मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत बताया था कि P implies Q इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, और वहाँ से फिर उसका नेगेशन निकल जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि आपको वो चीज़ याद है कि नहीं है। ये एक रिजल्ट था P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q के, करेक्ट है। यहाँ से ही नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q निकाल लेते हैं, ये होता है P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, और P डबल इम्प्लाइज Q ये इक्विवेलेंट होता है P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज P, करेक्ट है। और मतलब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कंजक्शन ऑफ कन्वर्स एंड इट्स कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स, करेक्ट है कि नहीं। अब P इम्प्लाइज Q आप ये रख लीजिए, Q इम्प्लाइज P भी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन पुट ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द नेगेशन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो यू विल गेट दिस negation of P conjunction Q disjunction P conjunction negation of Q equivalent to L. Got the point? Okay, come to the third problem. So this is our third problem. Okay, as you can see that S1 is there, S2 dash, S3, S2 dash, S3 dash, right. So we are having three switches, right, and of course complementary switches are also there. Okay, some of the switches are complementary in basic. Okay, that is the, if you are using S2, that means that you are automatically using S2 dash, that's its complementary, right. So basically there are three different varieties of switches, S1, S2 and S3, right. So therefore P represent S1 is closed, Q represent S2 is closed, and R represent S3 is closed, and of course L represent lamp blows. So P, Q, R and L are four simple statements. On the basis of these four simple statements, we have to represent this switching networks into the logical equivalent form. Okay, now here these all switches and these switches are in parallel, whereas S1 is in series with S2 dash and S3, and of course S2 dash and S3 are in parallel. तो ये इसके साथ में दोनों स्विचेस जो पैरेलल है उसके साथ में सीरीज में। तो सबसे पहले तो हम इसको पैरेलल को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको S1 क्या है, P है, तो P हो गया। अब सीरीज में है तो कंजक्शन आ जाएगा, ये कंजक्शन सीरीज में होने से। उसके बाद में S2 डैश और S3 पैरेलल में, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q होगा, ठीक है, और पैरेलल है तो डिसजंक्शन होगा, S3 है मतलब R होगा, ठीक है। अब फिर से इसको आप ऐसे लिख दीजिए, फिर से ये पैरेलल में इसके साथ में तो डिसजंक्शन होगा, करेक्ट है। अब S2 डैश और S3 डैश सीरीज में है तो S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, सीरीज में है मतलब कंजक्शन, S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, फाइन। ये बनेगा आपका P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q कंजक्शन नेगेशन ऑफ R, ठीक है। तो ये इसमें मैंने सारे जो भी डिफिकल्ट वैरायटीज है वो सबको इसमें कवर कर दिया है कि सीरीज, पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, करेक्ट है कि नहीं।
So I hope that you people have understand, okay, how to convert the switching networks into the logical equivalent. And now we will go vice versa. Next variety problems, the logical equivalents are given and we have to construct the switching networks, right? So this is our next problem. A logical equivalent is given, logical statement is given, and we have to convert this into the switching networks. तो जैसे मैंने बोला था कि कंजक्शन रहेगा अगर दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में, तो वो एक्चुअली में स्विचेस सीरीज में होंगे, और डिसजंक्शन रहेगा तो वो पैरेलल में रहेंगे. बस ये है, कंजक्शन किसके लिए, सीरीज के लिए, और डिसजंक्शन किसके लिए, पैरेलल के लिए. बस ये कॉन्सेप्ट करना है. तो एस पी क्यू एंड आर और 3 switches, right? Say S1 is closed, okay, and Q, S2 is closed, ठीक है, and R, S3 is closed. So fine, as we are observing the 3 different simple statements P, Q and R, that means that we are having 3 different varieties of switches, and out of these 3 switches there may be possibility that we are having the complementary switches. That depends upon the negation. If negation is involved, so as you can see that negation of P is involved, that means that switch S1 is coming along with its complementary switch. Got the point? Yes. And similarly the negation of Q is there, but negation of R is not there. So negation of R is not there, therefore this particular S3 switch is not a complementary type of switch, right? क्लियर हो गया? हाँ. तो अब यहाँ से आते हैं सर्किट में. तो सर्किट बनाना है तो यहाँ बना लेते हैं. P और Q S1 और S2 सीरीज में है. ये हो गया S1 और ये हो गया S2, सीरीज में आ गए, और उसके साथ में फिर पैरेलल भी है. ठीक है, तो पैरेलल है तो यहाँ नहीं आएगा. स्विचेस पैरेलल है तो ये यहाँ आएगा. ठीक है, अब यहाँ नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P है, इसका मतलब S1 डैश है. ठीक है, फिर कंजक्शन है तो सीरीज में रहेगा. सीरीज में रहने के बाद में ये दोनों फिर से पैरेलल है, तो 2 स्विचेस ऐसे कर दो. ठीक है, ये 2 स्विचेस पैरेलल हो गए. फाइन. तो S1 डैश कंजक्शन है तो ये दोनों सीरीज में आ गए उसके साथ में, और ये अपने आप में पैरेलल में. नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ P मतलब S1 हो जाएगा. और यहाँ पे एक और स्विच है और वो है R S3, ये. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, फाइन. अब यहाँ से आप क्या करो, सीधा सीधा बैटरी और लैंप लगा दो. ये बैटरी और ये लैंप, ये बन गया आपका स्विचिंग नेटवर्क. कैसे बनाया मैंने, S1 और S2 कंजक्शन होने से सीरीज में है. ठीक है, फिर डिसजंक्शन है, मतलब ये सारे स्विचेस इन दोनों स्विचेस के पैरेलल में है. ठीक है, तो ये पैरेलल में आने के लिए ऐसे कर दो. अब ये पैरेलल में भी ये नेगेशन ऑफ P सीरीज में इन स्विचेस के साथ में, तो नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश. अब ये सारे स्विचेस इसके साथ में सीरीज में है, तो ये सीरीज में है, और ये जो अपने आप में पैरेलल में 3 स्विचेस, नेगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन P, डिसजंक्शन R. तो नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश हो जाएगा, ये तो S1 हो जाएगा, और ये S3 हो जाएगा. आई होप दैट अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द लॉजिकल स्टेटमेंट इनटू द स्विचिंग नेटवर्क्स. ठीक है, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको देखते हैं. P डिसजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P, कंजक्शन नेगेशन ऑफ, एक्चुअली में दिस इज नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q. ठीक है, तो P और Q ही दिख रहा है.
एक तो P है एक Q है, उसका नेगेशन है P का भी और नेगेशन है Q का, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस तो है, लेकिन दो ही डिफरेंट वेराइटी के स्विचेस हमने यूज किया है। P represent S1 is closed and Q represent S2 is closed and of course L represent lamp blows। ठीक है, अब नेटवर्क में आते हैं। तो P डिसजंक्शन है, तो ये स्विच S1 और डिसजंक्शन होने से ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये S2। ठीक है, अब ये पैरेलल होने के बाद में इनके साथ में बाकी स्विच सीरीज में है। ठीक है, इनके साथ में बाकी स्विच सीरीज में है। ये तो बैटरी हो गई। ठीक है, अब सीरीज में क्या है, नेगेशन ऑफ P है, मतलब S1 डैश है, फिर से ये सीरीज में, कंजक्शन होने से सीरीज होता है एक स्विच, और ये नेगेशन ऑफ Q है, S2 डैश हो गया। ठीक है साहब, और ये हो गया आपका लैम्प, बन गया आपका स्विचिंग नेटवर्क, ये हो गया। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम अगर बन जाता है टाइमिंग के हिसाब से, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले इसका सर्किट दिया हुआ था, इसी वीडियो में सर्किट दिया हुआ है और इसका हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट। अब मैं इसी प्रॉब्लम्स को रिवर्स वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है और इसका स्विचिंग नेटवर्क बनाना है, तो P है, Q है, R है, तो 3 आपके पास में स्विचेस है। S1 इज क्लोज, फाइन, Q क्या हो जाएगा, S2 इज क्लोज एंड R क्या हो जाएगा, S3 इज क्लोज। और जहां जहां नेगेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस है। नेगेशन ऑफ Q इन्वॉल्व हुआ है, नेगेशन ऑफ R इन्वॉल्व हुआ है, नेगेशन ऑफ P इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्विच नहीं है। दिस Q एंड R आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। ओके फाइन, एंड L इज ऑफ कोर्स लैम्प ब्लोअर्स। और अब स्विच, अब देखते हैं, ये कंजक्शन होने से ये सीरीज में, ये डिसजंक्शन होने से पैरेलल है, तो ये एक स्विच, ये P है, तो ये S1 हो जाएगा, कंजक्शन होने से ये सीरीज में, और ये सीरीज में जो स्विचेस है वो आपके पैरेलल में, पैरेलल में तो ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये पैरेलल में, तो S1 के साथ में ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। नेगेशन ऑफ Q ये है, तो ये हो जाएगा S2 का डैश, और ये आपका क्या है, R है, तो ये हो जाएगा S3। तो इतना पोर्शन हमने बना दिया। अब डिसजंक्शन है, इसका मतलब यहां से फिर पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल। ठीक है, तो अब पैरेलल में इनके साथ में दो स्विचेस है, ये एक स्विच और ये अब इसके साथ में सीरीज में है। ठीक है, ये दूसरा सीरीज, तो ये नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ R है, मतलब S3 का डैश है, ये बन गया सी सर्किट, ये आपकी बैटरी, और ये आपका लैम्प हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लॉजिकल इक्विवेलेंट को स्विचिंग नेटवर्क्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेक द इनपुट आउटपुट टेबल इफ नीडेड। क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आप इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट कर सकते हैं मतलब लैम्प कब ब्लो होगा, लैम्प कब ब्लो होगा जब आउटपुट में 1 आएगा, और वो 1 किस सिचुएशन में आ रहा है, कौन सा स्विच क्लोज्ड है और कौन सा स्विच ओपन है, उसके बेस पे। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वी हैव डिस्कस ऑल द topics related to the logic that is being asked in JEE Mains, especially focused on the JEE Mains. This switching networks is completely board level and the MSCT level. Okay, so the JEE Mains ask every year one question and this is very simple, right? Fine.